इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, काइंडली टर्न ऑन योर वीडियो। अपनी वीडियो टर्न ऑन कर लो ताकि सही से इंट्रोडक्शन दे पाओ, ताकि मुझे पता चल पाए कि या यू आर द पर्सन। यस। So, who was saying कि they want to introduce themselves? Luffy. Okay, Luffy, you can turn on your mic and video at the same time. So we wanna see you how you introduce yourself. Yes. Yes, Luffy, go ahead. I can't turn on camera, sir. Okay, आप माइक से माइक पे ऐसे करके बोल सकते हो, just बट बोलो एटलीस्ट आप, ठीक है? Start. Yes. Hello everyone, I'm Luffy from UP and I'm a student of high school and I'm learning English since 1 year, and my purpose of learning English is to communicate worldwide or to travel around the world and visiting many foreign people and Mm-hmm. because it's a global language and it has a significance. English has a great significance in many fields like technology and many other fields. So that's why I So, want so Luffy, I want to what's improve my your English. what's your strength? Hmm? What's your strength? My strength that I'm a quick learner and I really like to learn languages. ओके, दैट्स फाइन। एंड वन मोर थिंग गाइस, ये सभी लोगों के लिए फीडबैक है। देखो, इस सेशन को तो आपने 2 सेशन मिस भी कर दिए होंगे, तो वैसे तो तब भी आपने बहुत कुछ मिस कर लिया, वो आपकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी। बट वो 2 सेशन में तो आप रिकॉर्डिंग से भी काम चला लोगे, बट इस वाले सेशन पे रिकॉर्डिंग से कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल आपका लाइव सेशन होगा, ठीक है? वैसे मैं तो आपको बोलता हूँ कि लाइव सेशन बेनिफिशियल होता ही है, बट ये वाला सेशन पर्टिकुलरली ज़्यादा बेनिफिशियल होगा लाइव पे, बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है। तो काइंडली डोंट लीव दिस सेशन, ठीक है? देखो, इंट्रोडक्शन देते टाइम या कहीं पे भी आपको, if someone is interrupting you, or if someone is saying something and you didn't get it, so instead of saying हाँ, तो you can say sorry, है ना? Sorry, can you please repeat? जैसे रफी, अभी मैंने आपको स्टॉप किया तो you just said है ना? तो instead of it you could have used sorry word, या फिर I didn't get you, है ना? तो ये छोटी छोटी चीज़ें में ध्यान रखनी है। एंड अच्छा, कोई और भी खुद को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था? सो हु वाज देयर? अनिल। अनिल, यू वांना इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ना? सो काइंडली गो अहेड। आई थिंक आपने वीडियो टर्न ऑन की थी फर्स्ट स्टेप पे, तो यू कैन टर्न ऑन योर वीडियो एंड यू कैन स्टार्ट। यस। क्या मेरी वॉइस आ रही है आपको? मी। ओके नफीजा, यू कैन स्टार्ट। ओके, जस्ट स्टार्ट, बिकॉज मैं फिर खुद भी अपनी क्लासेस प्रॉपर जो मुझे समझाना है वो सब मैं करवाने वाला हूँ, तो काइंडली स्टार्ट। Okay, so hello, sir. Hello, everyone. My name is Tafiza Ahmed, and I'm from Assam, and I'm currently pursuing my graduation from Dibrugarh University. And since 6 months, I'm trying to Okay, learn okay, English. just wait. Actually, I also want to give you some feedback upon your introduction. Although we will have the classes, but still I want to give you the feedback. So for that, just wait a minute. I'm just forwarding a audio note. Just wait a minute, ठीक है? मैं आपको बोलूंगा वापस बोलने को। आप वीडियो टर्न ऑन रखो, मुझे एक आधा आधा मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है? ओके, आपको मेरी वॉइस इसीलिए नहीं आ रही थी बिकॉज मैं ग्रुप पे एक वीडियो ऑडियो नोट फॉरवर्ड करा था एज मेंशनड। सो नाउ यू कैन स्टार्ट। ओके, स्टार्ट। So from the beginning, या फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। okay. So hello, sir, and hello, everyone. My name is Tafiza Ahmed, and I am 20 years old, and I'm currently pursuing my graduation from Dibrugarh University. And I have been learning English from last 6 months, but somewhere I am unable to speak fluently, and I genuinely want to speak fluently and confidently with everyone.
That's all Sure. about Something me. you wanna add? Ashi, what are your strengths? My strength is I'm a quick learner and self-motivated person. Yes, that's all. Okay. And ठीक my है, that was fine. That was fine. Actually, we are having 57 participants now. Nafija, Neeraj, Ali. Okay. See, you started confidently. Everything is fine. Your voice was also clear. Okay. So, see, you said na that I'm currently pursuing my graduation from this and this university. Okay. Well done, Nafija. Yeah. So, you just said, I think द करेक्ट देखो यहाँ पे ग्रामर का तो वैसा उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है बट यू जस्ट सेड दैट आई हैव बीन लर्निंग दिस फ्रॉम लास्ट 6 months राइट सो यू विल नॉट यूज दीज टाइप ऑफ वर्ड्स दिस एंड दैट यू विल जस्ट मेंशन द एग्जैक्ट थिंग इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश यू विल जस्ट से आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश है ना मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि यू शुडंट यूज दोज प्रोनाउन टर्म्स और समथिंग दैट इज रेफरिंग टू समथिंग आपको वो एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करना है व्हाइल गिविंग योर इंट्रोडक्शन काफ़ी बार क्या होता है ना कि सामने वाले को समझ नहीं आता कि आप दिस यूज़ किसके लिए कर रहे हो है ना आपको वो समझाना चाह रहा हूँ ठीक है एंड इंट्रोडक्शन के टाइम पे जनरली वर्ड आपको यूज़ नहीं करना आई जनरली वॉन्ट टू स्पीक फ्लुएंटली नहीं आई रियली वॉन्ट टू स्पीक फ्लुएंटली ठीक है तो जनरली वर्ड आपको यूज़ नहीं करना बिकॉज दैट शोज कि यू आर टेकिंग इट कैजुअली है ना सो एनी थिंग दैट यू आर एडिंग टू योर इंटरव्यू वाइल गिविंग योर इंट्रोडक्शन जस्ट वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए आप सीरियसली कंसर्न हो है ना ये चीज़ है एंड ठीक है बाकी योर स्ट्रेंथ वो जो भी आपने स्ट्रेंथ वगैरह बताई दैट वाज गुड एंड ठीक है बाकी कोई और इंट्रोडक्शन देना चाहेगा अभी मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेट भी सिखाऊंगा तो उससे आपका काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाएगा डोंट वरी सो नाउ यू कैन ऑफिशियल टर्न ऑफ योर माइक इन वीडियो सो एक सेकेंड अच्छा अदर देन नफीजा हु एल्स वांट टू ट्राई नफीजा यू कैन टर्न ऑफ योर वीडियो ओके जो भी आपने आपको इंट्रोड्यूस करना है गाइस काइंडली आप थोड़ा सा अपना वीडियो ओपन करोगे तो इट वुड बी बेटर जैसे कि अभी नफीजा ने किया था देन आई विल स्टार्ट माई क्लासेस जो मुझे प्रॉपरली सिखाना है क्रियांश ओके क्रियांश आप स्टार्ट कर सकते हो जस्ट शो अस योर फेस एंड देन यू कैन स्टार्ट अदर विल लिसन यू टू यू यस Yes. Hello everyone. हाय I'm हाय Nandini Singh. I'm from Rajasthan. I have done my MCom and BEd, and right now I'm a mother of two kids. And what to say? Sorry, I just want to learn speaking English for my kids because they both are going to nursery and school, and so that's it. so what you have done in your graduation you told that you have I done have done BE MCom and BEd. okay so आपको कुछ ऐसे ambitions हैं और goals that you're currently focusing upon something you want to achieve ऐसा कुछ I just want to learn speaking for education also. okay so what are your strengths If I get proper environment, then I will do better. okay and what's your weakness I don't get environment. okay and something I can say like what's your hobbies or something ऐसा कुछ Um, dancing is my first hobby. mm-hmm. And as I Okay, say, I'm that's a that, mother of that's two that's kids, that's so all. Fine, fine, fine. okay. Just go to man. Okay, Sorry. first of all, I just really want to appreciate your efforts. Like you just spoke honestly and you didn't stay silent and you tried to express your thoughts. Okay, and your intention was very strong, but some of the mistakes I have noticed. You have said that I have done my MCom, or you have said something my BEd, BEd, BEd. no BEd. Uh, So it will not be I have done. I have completed my MCom. Okay, I have ठीक है completed. सो इट वुड नॉट बी हैव डन सो आप देखो गाइस ये फीडबैक है वो सिर्फ उन Little लोगों के लिए bit. नहीं है जो इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं दिस फीडबैक इज Mhm. फॉर ऑल ऑफ द 53 पार्टिसिपेंट्स 52 पार्टिसिपेंट्स आर ओवर देयर राइट सो बाकी सब ठीक है और मुझे Okay. क्या क्या चीज़ बोलनी थी इन हाँ
आपने कहा था ना, आई जस्ट वॉन्ट टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश, है ना? Yes. तो यूल हैव टू से, आप ऐसा बोलोगे कि आई जस्ट वॉन्ट टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, है ना? इस पे Okay. आप I think I'm gonna कंटिन्यूस यूज ये नहीं speak. करोगे, ठीक है? आई जस्ट वॉन्ट टू लर्न Okay, okay, स्पीकिंग इंग्लिश, है ना? okay, स्पीकिंग नहीं okay. बोलोगे, आई जस्ट वॉन्ट टू Speak. लर्न टू स्पीक इंग्लिश, Speak English. Okay. ठीक है? बाय द वे, आपके पास भी आईपैड है क्या? Yes. हाँ, वो मुझे ऐसे पता चला कि जूम इन जूम आउट हो रहा है ना, दैट Okay. हैपेंस विद माय आईपैड, है ना? Okay. हम्म। एंड आपने क्या कहा था कि व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश सो दैट यू मे टीच योर किड्स ना, या फिर ऐसे बोला Yes. कि यू मे For सपोर्ट job देम इन देयर also. For एजुकेशन, job also. ठीक है? Because I'm living in Abu Dhabi, not right now. हम्म। Right now I'm in India, Rajasthan. But एंड व्हेन यू विल से for ना, यू आर नॉट गेटिंग एनवायरनमेंट, सो मैंने तो आई गॉट इट, बट इफ यू सेड, इफ यू विल से इट समवेयर एल्स, तो यू विल डिस्क्राइब द होल सिचुएशन कि आई डोंट गेट इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट, okay, है ना? I don't get द होल English आइडिया, speaking. है ना? बाकी it was great, and also I can give you the substitution. After that I will also guys give you the feedback, but उससे पहले अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैं कैसे आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? So before starting anything I want to share you the screen. तो let me know कि स्क्रीन विजिबल होगी, आप सिर्फ मुझे चैट पे बता सकते हो, ठीक है? आई वॉन्ट नीरज, जिसके बाद आप बता देना, बता मतलब बोल सकते हो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? सो आप मुझे मैसेज में बता दो, इसमें स्क्रीन विजिबल? यस, यस विजिबल, यप। तो अभी आपको देखो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है चीज़ों को, मैं बहुत अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ, बहुत सही चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है चीज़ों को, ठीक है? हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ और भी करेंगे। अब देखो ध्यान से समझना कि मैं क्या चीज़ आपको करवाने वाला हूँ। देखो, आपके साथ ना प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कई बार हम ना इतनी छोटी छोटी चीज़ें बोलते हैं, फिर इतना कुछ बोल देते हैं कि हमको समझ नहीं आता कि हम कहाँ से शुरू करें। मतलब काफ़ी बार हम इंट्रोडक्शन काफ़ी जल्दी एंड कर देते हैं, राइट? हम शुरू करते एंड कर देते हैं, या फिर हम स्टार्ट करते तुमको समझ नहीं आता हम क्या बोले, है ना? तो आपको ना देखो माइंड पे क्या होना चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है? उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप किसी भी टाइप के इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा कि हर जगह सेम फ्रेमवर्क यूज़ होता है, बट आपके पास एक प्रॉपर फॉर्मेट है, तो आप उस फॉर्मेट को हर जगह अप्लाई कर सकते हो, थोड़ी बहुत चीज़ें आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है? देखो, अगर आपके पास एक बेसिक फॉर्मेट है, इफ़ यू आर हैविंग अ बेसिक फॉर्मेट, तो आप आगे चलिए थोड़ा एडवांस लेवल का इंट्रोडक्शन भी देना सीख सकते हो। आपको थोड़ा इसमें ही स्लाइड सॉर्ट ऑफ चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना? अग्री करते हो ना यार? यही जो चीज़ होगी। बट अगर आपको प्रॉपर फॉर्मेट ही नहीं पता है, आप सीधे एडवांस सीखने जा रहे हो, तो आपको तो बेसिक ब्लॉग्स भी नहीं बने ना। ये तो वही बात होगी ना कि आप, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है। अब आपको सेकंड और थर्ड फ्लोर बनाना है, लेकिन आपका फर्स्ट फ्लोर ही नहीं बना है, तो पहले आपको फर्स्ट फ्लोर बनाना पड़ेगा ना, तभी तो सेकंड और थर्ड बनेगा। तो 7 डेज की क्लासेस में मेरा यही जो आपसे प्रॉमिस है कि आप एटलीस्ट अपना फाउंडेशन बिल्ड कर पाओ, ठीक है? 30 क्लास आर फॉर द फाउंडेशन। तो देखो आपको शुरू कहाँ से करना है। फर्स्टली यू विल स्टार्ट विद द ग्रीटिंग्स, जो कि सब लोगों ने ऑलमोस्ट, बहुत लोग मिस कर देते हैं, शायद अभी भी लोगों ने मिस की, या फिर आप लोगों ने नहीं की, मैंने कॉल नहीं किया, बट यू विल स्टार्ट द ग्रीटिंग्स। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, या फिर गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, ठीक है? और कभी भी आप माई सेल्फ यूज नहीं करोगे, यू विल नेवर यूज माई सेल्फ, ठीक है? यू विल ऑलवेज से माई नेम इज, ये कई लोग इस माई सेल्फ बोलते हैं, बट यू विल नॉट यूज माई सेल्फ एट एनी सिंगल कॉस्ट, ठीक है? You will say my name is this, then you will tell them about your current status. देखो, जो मैंने ये फ्रेमवर्क आपके लिए डिजाइन किया, that will work up, also work upon your advanced interview, whether you are preparing for any cabin crew interview kind of thing, whether you are preparing for a job interview, even you're preparing for any school interview, it will work for anywhere, ठीक है? सबके लिए काम करेगा। देन यू विल टेल देम अबाउट योर करंट स्टेटस, ठीक है? कि करंटली आप स्टूडेंट हो, आप ग्रेजुएट हो, आप हाउसवाइफ हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप क्या हो, यू विल टेल देम द इंटरव्यूअर अबाउट योर करंट स्टेटस। देखो, इंट्रोडक्शन क्या है कि आप अपने बारे में सामने वाले को बता रहे हो ना, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं लाओगे, सिंपल वे में बताओ, ठीक है? देन यू विल टेल देम अबाउट योर एकेडमिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड। अगर आप कोई जॉब करने जा रहे हो, तो यू विल टेल देम अबाउट योर, दैट यू आर डूइंग अ जॉब। देन यू विल टेल देम कि आपने बैकग्राउंड पे कौन सी जॉब की, या फिर आपने कौन सा सर्टिफिकेशन, कौन सा कोर्स किया हुआ है, राइट? तो ये वर्क वर्क भी हो सकता है, ये ग्रेजुएशन भी हो सकती है। स्टूडेंट, आप अगर स्टूडेंट हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो इन योर करंट स्टेटस। इसीलिए मैंने उसको नाम क्या दिया है, इट्स योर करंट स्टेटस, कि करंटली आप क्या हो, आप हाउस वाइफ हो, जॉब सीकर हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप स्टूडेंट हो, आप ग्रेजुएट हो, है ना? वो बताओ। देन यू विल टेल देम अबाउट योर academic
प्रोफेशनल बैकग्राउंड, यू कैन टेल देम अबाउट योर कॉलेज डिग्री, या फिर आप प्रोफेशनली आपने कुछ इससे पहले कोई और जॉब की है, वो आपने कोई सर्टिफिकेशन लिया, यू विल टेल द इंटरव्यूअर अबाउट योर सर्टिफिकेशन एंड ऑल, है ना, इन सर्टिफिकेशन जीडी एनीथिंग, ठीक है। उसके बाद अब आप उनको अपने इंटरेस्ट या अपनी स्ट्रेंथ्स बताओगे। देखो एक चीज़ गाइस ध्यान रखना, जो चीज़ आप अभी परस्यू कर रहे हो, ठीक है, आपने लेट सपोज आपने बोला कि मैं भी मार्केटिंग फील्ड पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, आपने बताया कि मैंने मार्केटिंग में सर्टिफिकेशन किया है या फिर मैंने बीबीए किया, वट एवर, देन व्हेन यू विल टेल देम अबाउट योर इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ, तो वहाँ पे ना आप ऐसी चीज़ें बताओगे जो आपकी अकेडमिक से या फिर आपकी कुछ करंट स्टेटस से या फिर आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड हो, है ना। अब ऐसा तो नहीं ना कि आप करंट स्टेटस कुछ और बता रहे हो, एकेडमिक बैकग्राउंड आपका कुछ और है और स्ट्रेंथ्स आपकी फिर कुछ और है ना, ऐसा नहीं है, सब चीज़ें रिलेट करनी चाहिए आपस में, है ना। तो एक दो चीज़ें अपने बता सकते हो कि हाँ, कि मैं मेरा एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट टीचिंग में है या फिर मेरी स्ट्रेंथ टीचिंग में है, और फिर आप अपना पर्पस बता सकते हो कि माई एम इज टू बिल्ड माई करियर इन दिस फील्ड एंड आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। इस तरीके से आप अपने वर्ड को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो मैं वापस इस फॉर्मेट को बता रहा हूँ स्क्रीन शेयर स्टॉप करके, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, देखो मैं आपको बहुत ईजी वे में समझा रहा हूँ। देखो फर्स्टली यू विल स्टार्ट विद द ग्रीटिंग्स, है ना, गुड इवनिंग। Firstly, you will start with your introduction with your greetings कि good evening everyone, not myself, my name is Kapil, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि आप अभी करंटली क्या कर रहे हो, ठीक है। करंटली आई एम डूइंग माय currently I'm working as an intern in the field of sales and marketing in this organization, मैंने बता दिया, ठीक है, मैंने बताया। उसके बाद मैं अपने पास्ट के बारे में बताऊंगा। आई कैन से दैट आई हैव डन माय बीबीए और आई हैव डन माय एमबीए फ्रॉम दिस एंड दिस यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये मैंने क्या बताया, अपने बारे में बताया, ग्रीटिंग्स भी बता दी। उसके बाद मैं अभी क्या कर रहा हूँ मैंने वो बताया, और इससे पहले मैंने क्या किया मैं वो बताऊंगा, है ना। अब यहाँ पे बात आती है मेरे इंटरेस्ट की, है ना। अगर मैंने कोई सर्टिफिकेशन की है मैं वो भी मेंशन कर सकता हूँ कि आई हैव डन दिस एंड दिस सर्टिफिकेशन फॉर दिस फील्ड। फिर अब अपने करंट के बारे में बताऊंगा कि अभी फिलहाल मैं किस चीज़ को लेके इंटरेस्टेड हूँ, है ना। माई स्ट्रेंथ लाइज इन कम्युनिकेटिंग विद एनी वन एल्स, और आई एम गुड इन कम्युनिकेटिंग विद एन एक्सट्रोवर्ट गाय, है ना। आई डू लव कम्युनिकेटिंग विद न्यू पर्सन्स, न्यू ऑडियंस, है ना। मैंने अपनी स्ट्रेंथ बता दी। फिर मैं अपना गोल बता सकता हूँ, है ना। माई गोल इज टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन लीडरशिप, है ना। आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ इन द लीडरशिप पोजिशन द नेक्स्ट 5 years। तो इस तरीके से आप चीज़ें बताओगे, ठीक है। तो कंफ्यूज मत करो, पहले अपनी ग्रीटिंग्स दोगे, अपना नेम बताओगे, आप अभी क्या करते हो आप वो बताओगे, फिर आप अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बताओगे कि आपने क्या किया है इससे पहले, आप क्या करते थे, है ना। देन आप अपने सर्टिफिकेशंस वगैरह ऐड ऑन कर सकते हो जो आपने किए हैं। फिर आप अपनी स्ट्रेंथ सामने वाले को बताओगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका क्या गोल है, ठीक है। दैट्स द ओनली थिंग। क्या किसी को कंफ्यूजन है इस चीज पे, प्लीज लेट मी नो। नो गाइस, किसी को कंफ्यूजन है तो काइंडली, मैं सिर्फ लिखने को, अभी आप बोल सकते हो, ठीक है, यू आर अलाउड टू स्पीक, आप बोलो एंड आई विल क्लियर यू समथिंग इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन, क्योंकि इसके बाद आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है इन द सेम फॉर्मेट दैट आई एम टीचिंग यू। यस। So, hello, sir. सॉरी। Can we say that I am currently pursuing IIT Madras PhD degree? Means currently pursuing. हाँ मतलब उससे कोई इशू नहीं है, बट मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। Sir. एल्स यू कैन ट्राई एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई जो काफ़ी सही थी, काफ़ी इजी है, ठीक है, कुछ भी इस पे हार्ड नहीं है। यू विल टेल देम अबाउट योर करंट स्टेटस, योर एकेडमिक बैकग्राउंड, एंड देखो, तो ये जो चीज़ है ना, इस पर कंफ्यूज मत होना, ये स्ट्रेंथ और पर्पस है ना, ये आपकी अलाइन करनी चाहिए, ठीक है। if you're having a certification from any university or anything, or you're having certification AI or something, so you can add that certification and then you can tell them about your goal and purpose, that's it। तो ये तो अलाइन कर रही है ना यार, आपकी जो स्ट्रेंथ है वही तो आपका गोल होगा ना। अगर आपकी स्ट्रेंथ कम्युनिकेशन में अच्छी है तो ऑब्वियसली you will want to be in you obviously will be in a field, or you would be in a choice of selecting that career, that you will opt that career that will be supporting, that will adhere to your strengths। अब मैं अगर बोल रहा हूँ कि आई हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन टीचिंग, या फिर आप बिना स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, मेरा कम्युनिकेशन वगैरह मेरी स्ट्रेंथ अच्छी है, तो मेरा पर्पस हो सकता है कि मेरा गोल जो है वो टीचर बनना हो सकता है ना। मेरा गोल एक पब्लिक स्पीकर बनना होना हो सकता है। तो ये आपकी अलाइन कर सकती है, ये आप आगे पीछे बोल सकते हैं, बट आप मेंशन करोगे, ठीक है, कि आपका क्या स्ट्रेंथ है और आपका क्या पर्पस है, ठीक है। तो एक स्ट्रेंथ अलग चीज होती है, बट वो स्ट्रेंथ बताना अलग चीज होती है। देखो यहाँ पे आपने इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ दोनों चीजें मैंने बोल दी है ना। बट जब सामने वाला इंटरव्यूअर आपसे पूछता है ना कि टेल मी योर स्ट्रेंथ्स, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है भाई, आप बताओ,
तो अभी मैं काफ़ी लोगों को देख रहा था, अभी आप लोगों ने जो अपनी स्ट्रेंथ बताई तो आपने सिर्फ ऐसे बोल दिया कि मेरी हार्ड वर्किंग या फिर क्विक लर्नर आप लोगों ने बोला, तो यू दैट्स नॉट द राइट अप्रोच यू विल से, ठीक है। आपको अप्रोच कैसे अपनी बिल्ड करनी है, यू विल से वन ऑफ माई की स्ट्रेंथ या फिर वन ऑफ माई स्ट्रेंथ इज दैट आई एम अ क्विक लर्नर, ठीक है। और उसके बाद ना आप रीजन भी दोगे कि वाई। फॉर एग्जाम्पल देखो, स्ट्रेंथ आई यू कैन स्टार्ट विद दिस, फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रेंथ मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इफ यू आर सेइंग दैट योर, अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो, अगर आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, तो आप ये नहीं कहोगे कि सर आई एम रिस्पॉन्सिबल, नहीं। दैट इज नॉट व्हाट एन HR or what a HR expect from you to speak if you are in a professional setting। और अगर आप मेरी क्लास से भी जा रहे हो तो you will not say like this कि अगर देखो आप मेरी क्लास में आके ये चीज़ बोल रहे हो तो फिर बाकी लोगों को आप पे डिफरेंस क्या है। आप पे इंप्रूव करने आए हो, अपनी इंग्लिश को अच्छे लेवल पे बिल्डअप करने आए हो, अपनी फ्लुएंसी बिल्ड करने आए हो, तो यू विल से लाइक दिस, आई कंसिडर माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। और क्यों रिस्पॉन्सिबल आप सोचते हो कि आप हो, आपको उसके रीजन भी देने हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको रियल सिचुएशन देना ही है कुछ, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल भी आप लोगों के लिए डाला हुआ है, देखो। अगर आप बोल रहे हो कि मेरी स्ट्रेंथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आई कंसिडर माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बिकॉज I make sure that I complete my tasks before deadlines and take ownership of the tasks, है ना। even when challenge arises। तो मैंने यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ भी बताई, बट एट द सेम टाइम आई गेव द रीजन दैट why this my strength, है ना, वाई दिस इज माई स्ट्रेंथ, मैंने ये भी मेंशन यहाँ पे किया हुआ है। और आपके पास कोई एक लाइव एग्जांपल होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा कि आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा कि लाइव एग्जांपल भी दो, बट अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ बोल रहे हो ना, अगर आप बोल रहे हो ना कि बिकॉज आई मेक श्योर दैट आई कंप्लीट माई टास्क बिफोर डेडलाइंस, है ना, क्योंकि मैं सुनिश्चित करता हूँ कि सुनिश्चित करता हूँ कि मैं अपना टाइम जो अपना टास्क जो है वो डेडलाइन से पहले ही कर लूँ, है ना। और मैं ओनरशिप का टास्क का ओनरशिप लेता हूँ। इवन चैलेंज भी अगर होता है ना तब भी मैं वो काम करता हूँ। अगर मैं चीज़ बोल रहा हूँ तो ऐसा कुछ मेरे पास रियल लाइफ एग्जाम्पल होना भी तो चाहिए ना। तो स्ट्रेंथ आपको अपने मन से नहीं बोलनी है, सच में अगर कोई स्ट्रेंथ है आपको तभी वो स्ट्रेंथ बोलनी है। और एग्जाम्पल देखो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझना, बिल्कुल बहुत मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। इवन अगर आप बोलोगे ना कि आपकी स्ट्रेंथ है मल्टीटास्किंग, तो आप कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो। और अगर आपको कहीं पे रियलाइज हुआ ना कि किसी की बर्थडे पार्टी थी, आप किसी की बर्थडे पार्टी पे गए थे, वहां पे आपको कुछ काम दिया गया था, आपने बच्चों से बहुत अच्छे से काम करवाया और पोलाइटली आपने उनसे काम करवा दिया बिना किसी लड़ाई झगड़े के, तो आप मल्टीटास्क करते हो ना, आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो। आप डेडिकेशन टीम मैनेजमेंट पे अच्छे हो। आप कई बार हम लोग क्या होते हैं, बॉयज़ लोग, हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमारा कई बार कोऑर्डिनेशन टीम से काफ़ी अच्छा होता है, हम टीम के कैप्टन होते हैं, तो अपनी टीम को हम अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। तो अगर आप अपनी स्ट्रेंथ दे रहे हो ना, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप वहाँ पे रीजन दो कि बिकॉज आई यूज टू प्ले क्रिकेट एंड ऑल, वो भी दे सकते हो, अच्छी बात है। बट आप थोड़ा सा बाहर बाहर की चीज़ें बोल सकते हो। जब आपसे डिटेल में पूछता है तो फिर आप अपना क्रिकेट का एग्जांपल दे सकते हो, या फिर आप सीधा भी बोल सकते हो कि हाँ, आई कंसिडर माई सेल्फ अ गुड टीम मैनेजर, आई एम गुड एट टीम मैनेजमेंट बिकॉज आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन इन द प्रेशर। और फिर आप अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, टाइम मैनेजमेंट। अगर आप बोल रहे हो कि आप टाइम मैनेजमेंट में अच्छे हो, तो आप क्या बोलोगे, आई कंसिडर माई सेल्फ गुड एट टाइम मैनेजमेंट बिकॉज आई प्रायोरिटाइज माई टास्क इफेक्टिवली एंड कंसिस्टेंटली। मैं अपने टास्क को इफेक्टिवली और कंसिस्टेंटली जो है प्रायोरिटाइज करता हूँ टू मीट डेडलाइंस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी, है ना। तो थोड़ी बाहर बाहर की मैंने बातें कर दी। अब इसके अंदर के आपके एग्जाम्पल्स हैं तो यू कैन ऐड ऑन दोज एग्जाम्पल्स। तो मेरा आपको समझाने का मतलब क्या है, जैसे अभी आई गेस उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था ना, अभी इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था, तो आपने बोला था कि आई एम अ क्विक लर्नर, है ना। तो आपको सिर्फ क्विक लर्नर नहीं बोलना, आई कंसिडर माई सेल्फ अ क्विक लर्नर बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड न्यू कॉन्सेप्ट्स easily एंड अप्लाई them इन प्रैक्टिकल situations इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, है ना। तो ऑल यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव अ रीजन। एंड इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। ऑल यू हैव टू डू कि आपने मुझे DM करना है, बिकॉज बहुत लोगों की स्ट्रेंथ ये होती है। तो आप उसको एज इट इज भी बोल सकते हो। मैं रट्टा मारने को आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगा, बट इफ़ यू वांट लर्न दीज थिंग्स तो आप ये याद भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको चीज़ें याद हो जाएगी तो उसके बाद आप एग्जाम्पल तो खुद से अध्ययन कर सकते हो, खुद से एड ऑन कर सकते हो। एम आई राइट गाइस, है ना। तो क्या यहाँ तक सबको समझ आता है क्या? काफ़ी लोगों ने लीव कर दिया है ना, काफ़ी लोगों ने शायद मीटिंग को लीव कर दिया। आई डोंट नो कि इनकी क्या रीज़न है। हॉबीज कैन बी इंक्लूडेड इन इंट्रो, या यू कैन ऐड वन हॉबी, वन और टू हॉबी, बट वैसे इंटरव्यूअर पूछ ही लेता है आपसे, ठीक है। बट इफ़ यू वांट ऐड तो आप एक हॉबी ऐड कर सकते हो, और वही आपकी स्ट्रेंथ भी हो सकती है, ठीक है। तो उस पर आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना। फाइन, यस। सो आपको मैंने क्या बताया कि इंट्रोडक्शन आपको अपना देना है, फिर आपको अपनी स्ट्रेंथ बतानी है। स्ट्रेंथ आपको जब बतानी है तो आपको एक एग्जाम्पल देना है। लेट्स सपोज अगर मैं कम्युनिकेशन में अच्छा हूँ, तो आई कंसिडर माई सेल्फ, वन ऑफ माई की स्ट्रेंथ इज आई कंसिडर माई सेल्फ गुड एट कम्युनिकेशन बिकॉज आई एम एबल टू आर्टिकुलेट माई आइडियाज इन अ वेरी क्लियर एंड क्रिस्प मैनर, ठीक है। अब मैंने रीजन दे दिया। इफ इन केस वो मुझसे पूछता है तो आई कैन गिव द एग्जाम्पल्स,
है ना. आई कैन से दैट आई सर आई डू होस्ट दी लाइव सेशन ऑन डेली बेसिस. आई हैव प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ अबाउट इट, है ना. इट्स नॉट लाइक कि आई एम जस्ट being intercepting things in my mind. I'm actually practically doing it, right? So I do have that practical exposure for the communication, so I can work in subtle different environments. तो ये मेरी स्ट्रेंथ है, ठीक है. तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर स्ट्रेंथ, और ये सब फ्रेमवर्क आपको अपने लिए बनाना है, ठीक है. सो देखो गाइज, आपका आज का टास्क क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है. पहले हम वीकनेस कर लेते हैं. देखो क्या है, काफ़ी लोगों से जब उनकी वीकनेस पूछता हूँ तो कई लोग बोलते हैं कि सर आई डोंट हैव वीकनेस, या फिर कई लोग अपनी बहुत गंदी वीकनेस बता देते हैं कि आई एम टू लेजी, अब मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं किसी को भी मार देता हूँ. तो आपको ऐसी ऐसी वीकनेस नहीं बतानी. आपको वीकनेस वही चूज़ करनी है जो रियल हो बट सेफ हो, और आपको वहाँ पे एफर्ट्स भी शो करने हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट. मेरे सेशंस पे देखो कहीं आने का फ़ायदा क्या है. इंट्रोडक्शन की क्लास आप यूट्यूब से भी सीख लेते, कोई बड़ी बात नहीं थी. बट यूट्यूब पे आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई भी चीज़ आपको इन डिटेल पे इतना नहीं मिलेगी, और वहाँ पे अपने लाइफ क्वेश्चंस के आप आंसर्स नहीं ले सकते हो जो कि यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, ठीक है. देखो वीकनेस को जब आप बोलोगे, ऐसा नहीं बोलोगे सर माई वीकनेस इज दिस, नहीं. वर्ड से ही फर्क पड़ता है इंग्लिश के अंदर. यू विल से, देखो आपके फॉर्मेट अपने खुद के भी हो सकते हैं, बट मैंने आपके लिए बहुत अच्छा फॉर्मेट रेडी किया है, तो आप इसी फॉर्मेट पे देना. वन वीकनेस आई हैव नोटिस्ड इन माई सेल्फ इज दिस, है ना, मेरे अंदर मैंने एक वीकनेस नोटिस करी है, दिस. हाउ एवर आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन इट बाई डूइंग दिस एंड दिस. तो अगर आपकी मान लो, देखो मैंने यहाँ पे ऐसी कॉमन वीकनेसेस रखी हैं जो ऑब्वियसली सबकी, मोस्ट ऑफ द पर्सन की वीकनेस होती है, ठीक है. फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, ओवर थिंकिंग है. तो यू विल नॉट से लाइक दिस. देखो वीकनेस कभी भी अपनी खुद नहीं बताई जाती, वो हमसे इंटरव्यू में पूछता है कभी भी. बट इफ वो पूछता भी है तो आप ये नहीं बोलोगे सर माई ओवर थिंकिंग, माई वीकनेस इज ओवर थिंकिंग, नहीं. You will say, one weakness I've noticed in me is that I sometimes overthink decisions, है ना. उसके बाद आप ये भी बताओगे, you will also give the reasons to improve. However, I'm working on it by setting time limits for decisions and focusing more on taking actions, है ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में नर्वसनेस होती है तो आप ऐसे नहीं बोलोगे सर माई वीकनेस इज दैट आई फील नर्वस वाइल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, नहीं. दैट्स अ टोटली बुलशिट अप्रोच. यू विल से, वन वीकनेस आई हैव नोटिस्ड इज दैट आई फील नर्वस वाइल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप्स. ये तो आपने बोलना था, ये तो अभी तक भी बोल रहे थे, बट डिफरेंस कहाँ पे आया. यू विल से, आप ये भी बताओगे ना आप क्या कर रहे हो उसके लिए. हाउएवर, आई एम इम्प्रूविंग दिस बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली एंड बाय पार्टिसिपेटिंग इन प्रेजेंटेशंस. तो ये भी अपने मन से नहीं बोलना है गाइस, सच में अपनी वीकनेस को एनालाइज करो, और सच बता रहा हूँ अपनी वीकनेस पे काम करो, ताकि अब सच में आपकी वो वीकनेस कल के दिन नहीं रहे. और इवन अगर आपका कहीं ऑल ऑफ अ सडन इंटरव्यू हो भी जाता है तो एटलीस्ट आप सच में लेजिट रीजन दे पाओ कि हाँ भाई मैं सच में अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ कर रहा हूँ. आप में से मैक्सिमम लोग की प्रॉब्लम क्या है, हम लोग अपनी वीकनेस को एनालाइज करते ही नहीं है, हमको अपनी वीकनेस ही अच्छे से पता नहीं होती. जब वीकनेस ही पता नहीं हो तो फिर काम कहाँ से करेंगे, कहाँ से करोगे ये काम. और जब काम ही नहीं करोगे उस पर तो फिर इंटरव्यू बता कैसे पाओगे कि मैं कैसे वर्क कर रहा हूँ. तो ब्लैंक इंसान क्यों पढ़ता है, क्योंकि सच में अंदर से वो चीज़ हो ही नहीं रही ना. रट्टा मार के जाओगे तो यहाँ पे याद रहेगा, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे सब कुछ भूल जाओगे. क्यों, क्योंकि यहाँ पे नर्वसनेस होती है ना. आप चीज़ों को तभी अच्छे से बोल पाओगे जब आप सच में वो चीज़ अंदर से वो चीज़ कर रहे हो. देखो एक चीज़ मैं आपको अभी बता के चल रहा हूँ बहुत एडवांस पे. अगर आप बोलते हो कि सर मैंने कुछ याद किया बट मैं नर्वसनेस के कारण भूल जाता हूँ, तो हाँ वो एक रीज़न हो सकता है आपका, बट सबसे बड़ा रीज़न जो आपका है ना, एक ये चीज़ होती है, फील फेल्ट फाउंड. एक होता है कि मैं एक होता है कि मैं वीकनेस रट्टा मार के चले जाऊँ और वहाँ पे बढ़ दूँ, बड़बड़ कर दूँ, है ना. तो मैं नर्वस होऊंगा तो मैं नहीं बोल पाऊंगा बिल्कुल. बट अगर मैं सच में, मुझे पता ना कि मेरी वीकनेस क्या है, इन रियल रट्टा मार के सच में पता है, और मैं सच में उसके लिए कुछ काम कर रहा हूँ ना, तो इवन इफ आई एम फीलिंग नर्वस तो मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सप्रेस कर ही लूंगा. फॉर एग्जाम्पल गाइज, आप मान लो कम्युनिकेशन पे वीक हो और आप मिरर के आगे डेली प्रैक्टिस करते हो, आप मेरी क्लास डेली अटेंड करते हो, वहाँ पे अगर आप नर्वस हो भी गए ना तब भी आप कहीं ना कहीं बता ही दोगे कि भाई आप रात को प्रैक्टिस करते हो और आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन करते हो. तो आपकी जो वीकनेस है वो आपके दिल से मन से आनी चाहिए, ऐसे नहीं, ठीक है. कई लोगों को लिमिटेड एक्सपीरियंस होता है तो दे कैन से, आई हैव लिमिटेड, माई वन ऑफ माई वीकनेस इज दैट आई हैव लिमिटेड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. हाउ एवर, आई एम एक्टिवली इंप्रूविंग दिस बाय लर्निंग न्यू स्किल्स एंड गेनिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस थ्रू प्रोजेक्ट्स, है ना. एंड एट द एंड जब आप इंट्रोडक्शन अपना पूरा करोगे, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, ये वर्ड आप बोलोगे. काफी लोगों ने आई गेस लीव कर दिया होगा, बट आई जस्ट, मैंने बोला था कि आई जस्ट वांट टू सी दिस वन, ठीक है. अली अकबर, कली काइंडली अटैक्ट अ लिटिल, काइंडली कंडक्ट अ लिटिल स्लो क्लास. भाई मुझे बहुत सारे टॉपिक्स कवर करवाने होते हैं. इफ यू थिंक गाइस इट्स गोइंग वेरी फास्ट, सो काइंडली लेट मी नो, बिकॉज सिर्फ मैं एक इंसान के बोलने से क्लास को स्लो नहीं कर सकता, बिकॉज हो सकता है उनके लिए वो पेस फास्ट हो, है ना. जब मुझे ज़्यादा No, लोग sir, बोलेंगे you कि are very फास्ट है, well. ओके.
सो वही है। अली, आप एक काम कर सकते हो डियर कि आप मेरी जब इस रिकॉर्डिंग को देखोगे तो थोड़ा स्लो करके देख लेना, बिकॉज वो यूट्यूब पे अपलोडेड होती है, तो वहाँ पे यू हैव द ऑप्शन टू टर्न डाउन द स्पीड। ठीक है। अ, अब देखो गाइज, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैंने कल भी चीज़ बताई थी कि मेरा जो है वो इसके अलॉन्ग विद दिस, कि क्लास का थर्ड डे, अभी 4 डेज क्लास और चलेगी। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है गाइज? अच्छा ठीक है, सॉरी। एक्चुअली मैं आपको बता रहा था, इफ़ यू आर रियली सीरियस टू इम्प्रूव, मतलब अगर आपको एक अच्छी लेवल तक चीज़ें इंप्रूव करनी, को 7 डेज की क्लास में मैं ये तो नहीं बोलूंगा ना कि आप बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल इन 7 डेज ओनली, है ना। तो आई डू हैव माई 30 डेज प्रोग्राम, ठीक है। ये 4 वीक्स का प्रोग्राम रहता है, जिसको मैं एक्सटेंड करके काफ़ी बार 5 वीक्स का भी कर देता हूँ मैं, इफ़ यू आर फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट और इफ़ यू वांट मोर प्रैक्टिस। तो इस पे देखो, मैं चीज़ें ज़्यादा करवाने, मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। यू वेरी वेल नो अबाउट माई टीचिंग स्टाइल की वो क्या है। बट इसमें मैं ये सब चीज़ें कवर करूंगा, ठीक है, इन माई ओन स्टाइल, जैसे मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे मैक्सिमम 13 से 14 पार्टिसिपेंट्स ही होते हैं, नॉट 50, 60, 70, ये नंबर यहाँ पे नहीं चलता है। ठीक है। तो यू डू हैव मोर टाइम टू इंटरेक्ट विद मी, टू कनेक्ट विद मी, टू आस्क योर डाउट्स। और कई बार यहाँ पे 7 to 8 पार्टिसिपेंट्स भी रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो, बट एट मैक्स 12 से 13 पार्टिसिपेंट्स ही रहते हैं। ठीक है। तो आई विल बी कवरिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और मैं सिर्फ कवर नहीं करवाता, वी ऑल्सो डू द प्रैक्टिस। ठीक है। यहाँ पे हम रोल प्ले करते हैं, यहाँ पे हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, और यहाँ पे हम डिबेट्स वगैरह की क्लासेस भी करते हैं, तो हम हर चीज़ करते हैं। ठीक है। पोलाइट वर्सेस डायरेक्ट लैंग्वेज, हम ये चीज़ मैं करवाता हूँ। ठीक है। बिकॉज काफ़ी बार हम ना पोलाइट साउंड करना चाहते हैं, बट हमारे पास एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड नहीं होता कि हम कैसे पोलाइट साउंड करें, राइट। तो वो चीज़ें भी हम कवर करते हैं यहाँ पे इन क्लासेस के अंदर। आज सच मैंने बता दिया, दिस इज माई वीकली ब्रेक डाउन। ठीक है। शॉर्ट लिसनिंग एक्सरसाइज करते हैं, फ्लुएंसी एक्सरसाइज करते हैं, दैट देखो कई बार हम सोच होता है ना, बोलने से पहले सोचते हैं या ट्रांसलेट करते हैं उस वजह से हम बोल नहीं पाते, तो हाउ टू स्टॉप थिंकिंग इन हिंदी एंड डायरेक्टली स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, ये चीज़ मैं करवाता हूँ। ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए वो ये 4 वीक्स की क्लास है, तो यहाँ पे हम हर एक चीज़ आराम से करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते। ठीक है। पोलाइट वर्सेस कैजुअल इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन प्रैक्टिस, आस्किंग फॉर एंड गिविंग ओपिनियंस, है ना। जॉब इंटरव्यू पे सेल्फ इंट्रोडक्शन आपने कैसे देना है, ऑल्दो मैंने आपको इंट्रोडक्शन की क्लास ली, बट जॉब पे थोड़ा सा चीज़ें अलग हो जाती है, राइट। एंड एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन तो हम करते ही हैं प्रैक्टिस। ठीक है। टॉकिंग अबाउट योर पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे हम बताया जाता है। फिर यहाँ पे हम स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस करते हैं। स्टोरी टेलिंग आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, स्टोरी टेलिंग सबको आनी चाहिए। स्मॉल टॉक प्रैक्टिस करते हैं, इंटरव्यू की प्रैक्टिस करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग की बेसिक्स मैं आपको करवाऊंगा, कैसे आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज रखनी है, कैसे आपको अपनी वॉइस टोनालिटी चेंज करनी है, वॉइस मॉड्यूलेशन में सिखाता हूँ। ठीक है। हर एक चीज़ यहाँ पे है, बट हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप है, विद लाइव फीडबैक एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस। ठीक है। तो जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए या फिर फुल 4 वीक्स प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इस सेशन के बाद दे कैन डीएम मी। ठीक है। आई विल नॉट एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड दिस ऑन द ग्रुप, यू विल हैव टू डीएम मी फॉर दिस। ठीक है। सो इसमें मैं ज़्यादा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अभी हम चलते हैं लाइव एक्टिविटी पे। आई हैव टोल्ड यू द एग्जैक्ट फॉर्मेट एंड एवरीथिंग। 42 लोग यहाँ पे जो है, आई थिंक वो रियली दे आर रियली सीरियस वन, तभी वो ग्रुप लीव पे नहीं गए हैं। एंड आई गाइस आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कि यू आर रियल हीरो इन योर सेल्फ, राइट, क्योंकि आप इतने मोटिवेटेड लग रहे हो। अच्छा, कोई कुछ कहना चाह रहा था ना? यस, कैन यू कैन आस्क इन डीएम। See, if you're having any doubt regarding that spoken English class, you can ask me in the DM, or you can we can schedule a call. ठीक है। कॉल पे आपको और चीज़ें बता दूंगा, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको सीखना है। तो गाइज एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ स्टार्टिंग से, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको अपनी ग्रीटिंग से स्टार्ट करना है। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज कपिल, या फिर जो भी आपका नेम है। उसके बाद करंटली आप क्या कर रहे हो, आप वो बताओगे। फिर आपने क्या पास्ट पे कोई जॉब, ग्रेजुएशन, एनीथिंग दैट यू हैव कवर्ड, आप वो चीज़ मेंशन करोगे। और अभी आपका क्या इंटरेस्ट है, आपकी क्या हॉबी है, फिर आपका जो मेन, अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन लिया है, कुछ भी आपने ऐसा कोई कोर्स किया है, तो आप उसके बारे में मेंशन करोगे। देन आपका पर्पस क्या है भाई, आपका गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हो आगे। इफ यू आर गिविंग अ जॉब इंटरव्यू, तो ऑब्वियसली वहां पे अपना आप गोल बताओगे ना कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन पे ये करना चाहता हूँ, आई वांट टू कंट्रीब्यूट मोर ऑफ माय स्किल्स इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अब इतना डीप तो मैं नहीं जा सकता कि स्पेशली जॉब के लिए अलग से पढ़ाऊँ, क्योंकि कई 7 डेज की क्लास है, बहुत सारे टॉपिक्स और भी करवाने हैं, है ना। बट मैंने आपको एक फॉर्मेट दे दिया है, इस फॉर्मेट को आप सेम जाके चैट जीपीटी पे पेस्ट कर दो, द फॉर्मेट दैट आई विल बी गिविंग यू। जिसको भी मेरे वो जो मैंने अभी करवाया था ना पीडीएफ, उस पीडीएफ का लिंक चाहिए, वो पीडीएफ चाहिए एग्जैक्टली, तो मुझे डीएम कर देना, डीएम पे आपको पीडीएफ आ जाएगी। ठीक है। तो उस सेम फॉर्मेट को आप चैट जीपीटी पे डालोगे, तो आपको एग्जैक्ट जो है अपने, अगर आप इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इन जॉब इंटरव्यू, तो आपको वो फॉर्मेट मिल जाएगा।
ठीक है। तो आपने ग्रीटिंग दी, अपना नेम बताया, उसके बाद आपने अभी आप क्या कर रहे हो वो बताया, अपने पास्ट के बारे में बताया कि आपने पास्ट पे कौन सा कोर्स या क्या कुछ किया है। देन उसके बाद आप अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हो, या फिर आप क्यों, आपका गोल या आपका पर्पस क्या है, देन यू विल डिफाइन दिस। ठीक है। फिर जब मैं आप सबकी स्ट्रेंथ पूछूंगा तो आपने क्या बोलना है, माई स्ट्रेंथ इज दिस नहीं, वन ऑफ माई की स्ट्रेंथ, या फिर वन ऑफ माई स्ट्रेंथ इज दिस। एंड वो फिर आपको क्यों लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ है, तो फिर आप वो चीज़ मेंशन भी करोगे, है ना, बिकॉज आई थिंक दैट दिस एंड दिस, है ना, कोई एग्जांपल आप दे सकते हो, या फिर आप, मैंने जो बताया आपको भी कुछ एग्जांपल्स दिए थे वो, है ना। एंड वीकनेस पूछूंगा तो वन ऑफ माई वीकनेस इज दिस, हाउ एवर आई एम वर्किंग ऑन इट। ठीक है। अनिल्स आईपैड, अनिल्स आप ना मुझे अभी ना मुझे फिर से आप मैसेज कर देना, बिकॉज बहुत सारे मुझे गाइज मेरे पास 500 to 600 मैसेजेस पेंडिंग है। ठीक है, मैं आपको अभी अभी मैं आपको ना एक चीज़ लाइव दिखाता हूँ, इफ़ यू आर थिंकिंग दैट आपको क्यों नहीं रिप्लाई कर पा रहा है, एक्चुअली देखो, दिस इज द सिनेरियो। मैं अपना अगर व्हाट्सएप ओपन करूंगा ना अभी भी, आपको मेरा फोन दिख रहा होगा ना, देखो, इफ आई ओपन माय व्हाट्सएप तो इवन यू कैन सी लाइक दिस, देखो अभी बहुत सारे मैसेजेस पेंडिंग है, बहुत सारे मैसेज अपडेट होंगे, देखो। सो मतलब मेरे इवन अभी भी काफ़ी सारे मैसेजेस पेंडिंग हैं, तो मैं बहुत मतलब मैं इतने लोगों का रिप्लाई टाइम से नहीं कर पाता, दैट्स दी ओनली रीज़न। ठीक है। तो कितनों को मैंने 8 to 9 डीएम्स मेरे ऐसे ही पड़े हैं, ठीक है, पेंडिंग पे। सो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, कभी कभी नहीं हो पाती चीज़ें वैसे, इसीलिए फिर जो है अभी मैं आपको इस सेशन के बाद, एक सेकेंड, यस, तो इस सेशन के बाद आई विल बी डेफिनेटली बी ट्राइंग टू रिवर्ट यू बैक। अच्छा, आफ्टर दिस वन हु विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। ज़्यादा नहीं, सिर्फ हम एक दो लोगों को इंट्रोडक्शन लेंगे, देन वी विल ऑल्सो मूव टू प्रोनाउंसिएशन क्लासेस, मेरे कुछ वर्ड्स और करवाने हैं आप लोगों को। तो कौन अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा आफ्टर लर्निंग दिस फॉर्मेट एज सच ऑफ गिवन? ओके रेडमी, एंड यू कैन टर्न ऑन योर वीडियो एंड माइक, देन वी विल स्टार्ट। Good evening, sir, and everyone. My name is Niyati, and I am from Mirzapur. I have recently completed my post. नियति, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। मैं एक ना मेंबर कोऑर्डिनेट सेंड करा था, आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट, बिकॉज मैं सुन नहीं पाऊंगा, Okay, sir. मुझे 10 सेकंड दो। Okay, okay. Got it. Yes, now you can start, Yes, Niyati. sir. Yeah, Okay, yeah. okay, okay. Good evening, Niyati, sir, and have you turned on everyone. your video? Sorry, sir, it's not Okay, okay, no possible. worries, no worries. If it's not possible, then start. Okay, sir. Firstly, good evening, sir, and everyone. My name is Niyati, and I am from Mirzapur. I have recently completed my post-graduation in English literature, and right now I am preparing for the B.Ed entrance exam as well as UGC NET. I have always been passionate about literature. I love reading and exploring new ideas and perspectives. Uh, the next one is I joined this group because I want to enhance my communication skill and build confidence in English fluently. Sorry, speaking English fluently. Sorry, sir. And I am really happy to be a part of this group, and I hope we all learn and grow together. Thank you so much. That's So, Niyati, what are your strengths? my strength. Sorry, sir, I haven't any strength. I think I just love reading poetry. That is main thing, and I just want to interact with other societies issues. Hmm. And what's your weakness? Weakness, sleeping is my Hmm. weakness, main weakness, I think. Sorry. Is so Okay. sleeping. Okay, sleeping is a weakness, Yeah. but okay. Sorry, sir. But instead, you can define in this way. Ki, see, I just want to give you some feedback on this. Actually, मैंने इतना, Okay, got it. you just said ना कि I have post graduation in this literature, or you said something. I have recently completed my post-graduation in English Okay, okay, literature. okay. And you said that you are preparing for any BA or B.Ed entrance exam, Like something, no? B.Ed entrance exam. Okay. B.Ed entrance exam. And I joined this group because I want to improve my communication skill and confidence and speak. I want to build confidence while speaking English. ठीक है, ठीक है, ठीक है. Mm-hmm. Uh, Mm-hmm. See, आपने एक चीज यूज की थी, द नेक्स्ट वन इज तो काइंडली अवॉइड डेटा, Yes, नेक्स्ट वन yes, इज yes. नहीं बोलना, ठीक है, वो मुझे समझ आ गया था कि आपको Okay, रियलाइज उस got टाइम it, पे हो sir. गया था।
आपको भी उस समय रियलाइज हो Yes. गया था, बट फिर वो था कि वो बोल दिया था तो Yeah, फिर got आपको it. लगा कि आगे बढ़ती हूँ, है ना? ठीक है, ठीक है। Yes. सो आई लाइक टू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिस्कस सोशल इश्यूज, आपने कुछ बोला था, राइट? Yeah, I want to interact with others and I love आई to थिंक दैट वाज know about समथिंग this. ओवर कॉम्प्लिकेटेड फ्रेजेस यू हैव यूज्ड, सो आप थोड़ा सा इसको इजी बना सकते हो। आई विल गिव यू अ बेटर वर्जन। और सबसे बड़ी बात, आपने बोला स्लीपिंग इज माय वीकनेस, साउंड्स वेरी अनसीरियस एंड साउंड्स वेरी कैजुअल। Yeah. ठीक Mm. है, आप पता कैसे बोल सकते हो? Sometimes Mm. I tend to procrastinate, but now I'm working upon my consistency. ठीक है? Okay. So kindly Can you have repeat good it? substitutes. Actually, I You can didn't catch say it. sometimes I tend to procrastinate. मतलब procrastinate मतलब आपको पता है ना, procrastinate मतलब टालना। Yeah, sir. Talna. Sometimes I tend to procrastinate, but now I'm improving. फिर मैंने बोला था ना कि जब आपको अपनी weakness बोलनी है, however यूज करना है ना? However, I'm Okay. working on it by being consistent. Okay, got it. ठीक है? Then Yeah. 42 participants है ना, ठीक है? Then tonality and delivery analysis अगर मैं बोलूँ तो your introduction was strong, but in questions your confidence slide dropped slightly, ठीक है? So Yes, थोड़ा सा sir. आपको उस टाइम Actually, पे I ध्यान देना है। hesitate. हम्म Mm. Prepared answer will make you sound good, but spontaneous answer will make you sound fluent, है ना? तो I Yeah, will got it, also give sir. you अब I'll also देखो, जो भी लोग इनिशिएटिव लेंगे I will give them the polished version, ठीक है? अब आपको polished Okay. version चाहिए तो आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा नीचे, तो आप मुझे टेक्स्ट कर देना, आई विल गिव यू अ रिफाइंड वर्जन ऑफ योर इंट्रोडक्शन, ठीक है? आपको मैं टाइप करके सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। अब नेक्स्ट कौन देना चाहता है? Sir, I am Abhishek. अभिषेक, ओके अभिषेक, जस्ट गो अहेड एंड इफ पॉसिबल टर्न ऑन योर वीडियो, इफ पॉसिबल। Sir, sorry, it is not possible because. ओके ओके अभिषेक, कैरी ऑन, स्टार्ट। Okay, sir. Good evening. My name is Abhishek Maurya, and I am from Balia district in Uttar Pradesh. Sir, I am pursuing a Bachelor of Technology with Computer Science Engineering with Mathematical Innovation and AIML from Delhi Technical University. Sir, my hobbies included like reading books, learning new things, and improving. I just want to be improving myself. Uh, so my You goal want is to become. improve yourself by doing what? Sir, I forget that. Sorry. ओके सी, यहाँ पे ना नियति की आपको सबको ध्यान रखते हुए नियति ने एक चीज़ क्या बोली थी। नीति ने पहले अपने बारे में बताया, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के बारे में बताया, व्हाट शी हैव डन एंड व्हाट शी इज करेंटली डूइंग, एंड देन शी स्टेटेड कि आई एम पैशनेट अबाउट, यू कैन स्टार्ट। देखो मैंने आपसे कहा था ना, आप तीन चीज़ें हर कोई बोलेगा, बट लास्ट में दोनों कंफ्यूज हो गए। आपने क्रिएट कर लिया, अपना नेम बता दिया, आपने अपनी एजुकेशन बताया कि अभी आप क्या कर रहे हो, ठीक है? आपने पास्ट में क्या किया आपने वही बता दिया। फिर मैंने कहा था ना, आपको इंटरेस्ट और आपका गोल आपको बताना है, गोल स्लैश पर्पस मैंने लिखवाया था। तो वहाँ पे ना आपको कुछ नहीं करना है, यू कैन जस्ट स्टार्ट विद, जैसे नियति ने किया था कि आई एम पैशनेट अबाउट दिस एंड दिस थिंग, जिस भी चीज़ में आप पैशनेट हो और उससे रिलेटेड आपका जो भी आज एक गोल है, चाहे वो जॉब करना हो, बिजनेस करना हो, कुछ करना हो, पोएट। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट राइटिंग, राइटिंग बुक्स एंड और ऑल, तो फिर आप बोल सकते हो कि आई वांट टू बी एन ऑथर इन द नियर फ्यूचर और समथिंग लाइक दिस, ठीक है? सो इट वाज अ गुड अटेम्प्ट बेसिकली। You spoke without stopping completely, and you also tried to give the detailed information. Confidence is there, but uncontrolled. है ना? It just need direction. है ना? Okay. So you said that I am pursuing a Bachelor of Technology with And, computer science engineering ना, and yeah. mathematical innovation and AI. So ये बहुत it was too long and confusing. ठीक है? So you can just say कि मतलब try to make it shorter. You just say I'm doing my BTech. That's it. मतलब from this and BTech in computer CS. I'm pursuing my BTech from computer science from Delhi Technological University. ठीक है? So थोड़ा सा उसको BTech यूज करो, ठीक है? और रिम, और जब सो आप सर सर बार बार रिपीट करते हो तो सर 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 ब्रेक्स, इट ब्रेक्स फ्लो बैडली, ठीक है? इट रिड्यूसेस योर इम्पैक्ट, सो अवॉइड यूजिंग सर एवरी टाइम, ठीक है? और मैं बोलता कि माई हॉबीज इंक्लूडेड लाइक, सो अवॉइड यूजिंग फिलर वर्ड्स, जस्ट से माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स एंड ऑल, जो भी आपने बोला, ठीक है? मुझे पता है वो इसलिए हो रहा था बिकॉज आपकी माइंड पे चीज़ें टाइम से नहीं आ रही थी, ठीक है? वो प्रैक्टिस से ही होगा, मैंने इसलिए आपको फॉर्मेट दिया, तो आपको सब प्रैक्टिस करना है, ठीक है, प्रॉपरली। सो आपको इसका बेटर वर्जन मिल जाएगा, ठीक है? नाउ नीरज इज ट्राइंग टू से समथिंग, अभिषेक यू कैन टर्न ऑफ योर माइक एंड यू विल गेट अ रिफाइंड वर्जन ऑफ इट, आप मुझे डीएम कर देना अभिषेक, ठीक है? डन। ओके नीरज, यू वांट टू से समथिंग, जस्ट गो ऑन। Okay. Hi, everyone. I'm Neeraj Tiwari. I'm from Surat, and I have completed my MA from English Literature.
then I will working from in real estate advisor. Sorry, because अभी मैं सीख रहा हूँ. Sorry, I think अभी my English is very weak, but I will try. ओके, बाकी गाइज देखो, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मेरी 7 डेज की क्लास में इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं सबको लाइव फीडबैक दे पाऊँ, सबकी टर्न आने का वेट करूँ. काफ़ी लोग सोचोगे सर ने मुझे मौका ही दिया नहीं बोलने का, बट गाइज आपको पता है कि 40 पार्टिसिपेंट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी एट ऑल. इसलिए मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि इफ़ यू वांट टू जॉइन माई फुल मंथ स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम यू कैन जॉइन दैट. उस पर हमारे पास 12-13 पार्टिसिपेंट्स ही होते हैं. वैसे तो 10 ही होते हैं, 10 से नीचे ही होता है, सिंगल नंबर ही आता है, बट एट Sorry, मैक्स मैं बोल रहा हूँ, sorry, है ना. ओके नीरज, मैं अभी अभी आगे कुछ और sorry चीज़ें Kapil मुझे sir. करवानी है, थोड़ा ठीक है. मेरा ओके, यू वांट स्पीक okay, नाउ. okay, okay. Thank you. ओके नीरज, कोई इशू नहीं है, कल आप दोबारा बोल के एक बार, कल आप Hello, sir. वापस से प्रैक्टिस करके फिर स्टार्ट कर सकते हैं हम, ठीक है. Hello, sir. Yeah, of I have course. one question, sir. ओके भावेश आस्क. Sir, in our daily life, which book we should read to improve our communication skills? सॉरी. Means I want to ask that which book we should read in our daily life, means in every day. See, it really doesn't matter which books are you are reading, but I will say कि just for at first build your reading habits. आपको जो रीडिंग हैबिट बनाने की सबसे ज़रूरत है, तो फॉर दैट यू कैन गो विथ ईऑन एसेज. AEON, ईऑन, AEON, ईऑन एसेज. जस्ट सर्च ऑन गूगल एंड स्टार्ट रीडिंग इट. एंड मैं तो आपको बोलूँगा कि फ्री के न्यूज़पेपर मैं कल से ग्रुप में फ्री का न्यूज़पेपर आपको डेली सेंड कर दिया करूँगा, सुबह सुबह, ठीक है, 8 बजे के टाइम. तो काइंडली रीड न्यूज़पेपर्स ऑन डेली बेसिस. कौन सा वाला पेज पढ़ना है मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता दूंगा. बाकी गाइज मैं आपको वही चीज़ बोल रहा था अगेन, कि अगर आपको ऐसे पर्सनली इंटरैक्ट करना है टाइम टू टाइम, मतलब आपको बिल्कुल ऐसे लाइव फीडबैक ऑन डेली बेसिस चाहिए, तो यू कैन जॉइन माई फुल मंथ स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम. एंड इफ उसकी कॉस्ट की अगर प्राइस की आपको बात बताऊँ तो I'm not just like this कि I'm just pointing towards something and just inaugurating the same topic again and again, but yeah, उसका प्राइस काफ़ी लोगों को डाउट रहता है, तो उसका प्राइस पूरे मंथ का 2000 रुपीज़ है, बट इट्स वर्थ द इन्वेस्टमेंट बिकॉज यू आर गेटिंग पर्सनलाइज्ड अटेंशन एंड यू आर गेटिंग पर्सनलाइज्ड फीडबैक, ठीक है. तो वो चीज़ काफ़ी अलग होती है इससे, बिकॉज़ वहाँ पे मैं एक रश पे नहीं रहता हूँ. इफ़ मेरी जगह आप भी होते तो आप भी थोड़ा-सा रश पे रहते, बिकॉज़ आपको बहुत सारी चीज़ें घंटे में कवर करवानी है ना. बट वहाँ पे वी आर हैसल फ्री. हमें पता है हम पास 30 दिन है, हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, नहीं भी हुआ तो हम 1 हफ्ता और एक्सटेंड कर लेंगे, राइट. सो So, ये चीज़ें थी जो मुझे करवानी थी कवर. तो इंट्रोडक्शन का आई होप आपको बेसिक्स कवर हो गया होगा. तो कल का मैंने भी आई एम जस्ट स्केप्टिकल बिटवीन 2 टॉपिक्स कि मैं कौन-सा करवाऊँगा, बट होपफुली मैं सुबह तक डिसाइड करके आपको बता ही दूँगा, ठीक है. और कुछ मैं जो आपको बता बता रहा था एक्चुअली, बाकी इस क्लासेस के बारे में, इफ यू वांट टू नो मोर यू कैन डीएम मी, ठीक है. जो आपको न्यूज़पेपर बता रहा था देखो, मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा, ठीक है. अपने हम डेली क्लास पे करते भी हैं न्यूज़पेपर रीडिंग, ठीक है. तो ये आपका देखो, आप 12th की यार बुक्स पढ़ सकते हो भाई. आप बोल रहे हो ना रीडिंग अपनी इंग्लिश कैसे है भाई, पहले आप रीडिंग की हैबिट बनाओ यार, ठीक है. उसके लिए आप स्टार्टिंग में बुक्स पढ़ सकते हो. देखो क्लास 12th की एनसीईआरटी में एक बच्चे को पढ़ाता हूँ, मैं इवन खुद भी पढ़ लेता हूँ. नहीं तो तो यू कैन सर रीड कोई क्लास कोई 12 बुक्स में बुक, मत हेलो सर है ना. सर हम्म. कोई कोई बुक्स में मीन्स ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स रहते हैं तो वो समझ नहीं आते ऐसा है. नहीं, बुक्स पे ये काफ़ी इजी वर्ड्स हैं, ठीक है, इन बुक्स पे, ठीक है. इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, यू कैन स्टार्ट. और मैं तो बोलूँगा इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो यार, ठीक है. वैसे तो सब कुछ पढ़ सकते हो, बट इसमें देखो 6th पेज आता है, दी एडिट पेज, ठीक है. इस पे पेज आता है दी, सॉरी मैं से ना ये इरेज कर देता हूँ, रुकिए मैं इसको. इस पे इसमें पेज आता है दी एडिट पेज, तो यू कैन स्टार्ट रीडिंग एडिट पेज, बिकॉज यहाँ पे ऑथर अपने ओपिनियन डालता है. तो स्टार्ट रीडिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स. जो वर्ड्स आपको नहीं समझ आ रहे हैं, जस्ट गूगल इट एंड नोट डाउन देयर मीनिंग. उससे क्या होगा ना, आपको किसी वर्ड की मीनिंग अभी नहीं पता, बट जब आप डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आपको एक वो वर्ड बार 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 दिखेगा, तो वो आपके माइंड को हिट कर जाएगा, तो फिर आपको परमानेंटली आपके माइंड पे वर्ड बैठ जाएगा, ठीक है. जैसे मिटिगेट एक वर्ड होता है ना, मिटिगेट मीन्स टू रिड्यूस. अभी आपको वर्ड शायद अभी याद रहे, फिर आप 1-2 मिनट में भूल जाओगे, या कल सुबह तक भूल जाओगे. तो अब ऐसा नहीं बोल सकता कि आप मंत्र जप लो इसका, लेकिन अब क्या कर सकते हो आप, कि आप इस वर्ड को अगर बार बार कहीं पे देख रहे हो, बार बार ये वर्ड यूज हो रहा है, तो न्यूज़पेपर में ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें, जो न्यूज़पेपर पहली बार पढ़ेगा ना उसको लगेगा भाई कितने नए नए वर्ड्स हैं. बट जिसको न्यूज़पेपर की हैबिट है ना पढ़ने की, 1 महीना 2 महीने से, तो उसको कुछ ही वर्ड्स नहीं लगेंगे, बाकी उसको सारे वर्ड्स रिपीटेड लगेंगे. तो जहाँ पे वर्ड्स का रिपीटेशन आपको फील हो जाए ना, समझ जाओ वहीं से आपकी वोकैबलरी बनना शुरू हो गई है, ठीक है. दैट्स द टेक्निक. तो आपको मैं कल से सेंड कर दिया करूंगा, कल मॉर्निंग से, ठीक है. सो तो गाइज सर डीएम दैट, करना पड़ेगा. नहीं वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है. इस सेशन की रिकॉर्डिंग
इस सेशन की रिकॉर्डिंग और न्यूज़पेपर का लिंक वो दोनों आपको ग्रुप में आ जाएगा। बाकी इफ़ आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए आज की क्लास की तो आप मुझे डीएम करो। दूसरी चीज़, अगर आपको वो फुल मंथ स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो भी आप मुझे डीएम कर सकते हो। मैं आपको फिर कॉल पे सब कुछ अच्छे से बता दूँगा, ठीक है? होप आपको आज सेशन पसंद आया होगा। और कल काफ़ी लोगों ने मुझे फीडबैक भी दिया था। कई लोगों ने मुझे ज़रा टाइप करके ही फीडबैक दिया था, कई लोगों ने वॉइस नोट पे भी दिया था मुझे फीडबैक, कई लोगों ने वीडियो नोट पे भी दिया था, ठीक है? गाइस अभी लीव मत करना, एक और एक्टिविटी आप लोगों के लिए है प्लीज़, वो आप मुझे I have डीएम a पे सेंड question. करोगे। जो मुस्कान अभी जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट, लेट मी कंप्लीट माय थिंग्स देन डेफिनेटली कैन स्पीक। एक्चुअली जो मैंने आपको अभी फॉर्मेट दिया है, जब आप मुझसे पीडीएफ में फॉर्मेट लोगे ना, तो फॉर्मेट के हिसाब से ना आपको अपना इंट्रोडक्शन फ्रेम करना है, ठीक है? एंड जिसको भी अपना खुद से आप ट्राई करना, लेकिन जिसको भी अपना इंट्रोडक्शन फ्रेम करवाना है, जिसको नहीं पता कि मैं क्या कैसे फ्रेम करूं, तो काइंडली आप मुझे वॉइस नोट में अपना इंट्रोडक्शन सेंड कर देना और मैं आपको इसका एक पॉलिश्ड वर्जन सेंड कर दूंगा, ठीक है गाइस? मैं ग्रुप फिर में सेंड आपको करना बोल रहा है हूँ। या सॉरी, ग्रुप में सेंड करना है या व्हाट्सएप पे नहीं नहीं, कोई ग्रुप में तो आप क्वेश्चन? अलाउड नहीं हो ना सेंड करने के लिए, हाँ वो मैं पूछ रहा क्योंकि इसमें ना फिर लोग बहुत फालतू के मैसेज वगैरह करते हैं, तो मैंने इसलिए ऑफ ही रखा था। उससे काफ़ी हूँ। अनोइंग यार हो जाती है नहीं चीज़ें। तो सर नहीं, आप मुझे डीएम डीएम पे में देखो सेंड क्या कर। करोगे। हाँ, आप मुझे डीएम पे ना मुझे हाई करके सेंड कर देना, मैं आपको पीडीएफ का लिंक तो सेंड कर दूंगा। तो बेटर तो यही रहेगा कि आप खुद से ओके सब कुछ बनाओ, है ना? इट वुड बी ओके लॉट बेटर श्योर, अगर आप नो सबसे सब कुछ प्रॉब्लम। बनाओ, बट अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे, जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था वहाँ पे आपको फिल सर करने में वॉइस प्रॉब्लम नोट हो रही है, डीएम में। हाँ, तो आप मुझे पूछ सकते हो इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम व्हाइल फिलिंग अप द थिंग्स इन द प्रॉपर फॉर्मेट, तो आई विल हेल्प यू। बट वो भी मैं तभी करूंगा जब आप मुझे एटलीस्ट वॉइस नोट में अपना इंट्रोडक्शन भेजोगे, है ना? तभी तो मैं फीडबैक दे पाऊंगा ना। अब जिसको मैंने 2-3 लोगों को बोला कि आई विल गिव यू द पॉलिश्ड फीडबैक, मैं उनको क्यों दे पाऊंगा? क्योंकि उन्होंने मुझे अपना इंट्रोडक्शन एक बार दिया है तो मुझे चीज़ें याद है, ठीक है? डीएम मतलब डायरेक्ट मैसेज, ठीक है? तो अब वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है, आपको पॉलिश वर्जन मिल जाएगा, बट एटलीस्ट ट्राई करना कि आप खुद से बनाओ, क्योंकि मैं इतने लोगों को तो नहीं दे सकता ना यार, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जो मेरी क्लासेस होती हैं वहाँ पे मेरे पास 7-8 पार्टिसिपेंट्स ही होते हैं। जो मेरी 1 मंथ वाली क्लास चलती है, मेरे 2 बैच चलते हैं, सुबह वाली पे 8 बच्चे हैं, शाम वाली में 9 बच्चे हैं, तो उनको मैं फुल प्रॉपर ध्यान दे देता हूँ। बट यहाँ पे इतने सारे लोग हैं तो पॉसिबल हो नहीं पाता। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड आपको फीडबैक, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो यू कैन गिव मी द फीडबैक इन माई डीएम्स ओनली, इन द वॉइस फॉर्मेट, इन द वीडियो फॉर्मेट। सबसे अच्छा रहेगा वीडियो फॉर्मेट, नहीं वीडियो फॉर्मेट में दे सकते हो तो अच्छा रहेगा वॉइस फॉर्मेट, वॉइस पे भी नहीं दे सकते तो चैट करके तो दे ही देना, ठीक है? बाकी कल आपको सेशन पे कल का टॉपिक मैं कल ही बताऊंगा। बाकी कहीं सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अच्छा, किसी को कुछ पूछना था ना, पूछ सकते हो। So I have a question that if हम्म। someone gives me a topic, I am unable to make proper sentences, but I can understand, but like yeah, I'm not even make simple sentence on a random topic, and I also stuck in grammar sometime. सो इज योर Like प्रॉब्लम कि आपके माइंड पे आइडियाज आते हैं, आप उसको बोल नहीं पाते, या फिर आपके माइंड पे आइडियाज आते ही नहीं है कि मुझे बोलना क्या है? हाँ, मेरे माइंड्स पे कभी कभी आइडिया एकदम नहीं आते। हाँ, तो फॉर दैट यू विल हैव टू लर्न अ फ्रेमवर्क। मैं कल चलो कवर करवा दूंगा वो, कि हाउ टू थिंक इन इंग्लिश एंड हाउ टू स्टोरी टेलिंग कहते सेम हैं उसको मेरे साथ एक्चुअली। भी सेम मेरे हाँ, साथ भी यही प्रॉब्लम है, ठीक है बिकॉज ठीक है मेरे पास आइडिया आता है बट आई कांट एक्सप्लेन। ठीक है। टुमारो विल हैव टुमारो विल हैव अ सेशन ऑन स्टोरी टेलिंग ओनली। कल मैं आपको सिखाऊंगा सब कुछ कि कैसे स्टोरी टेलिंग की जाती है, ठीक है? ओके डन। सर, एंड ग्रामर में भी मुझे बहुत कभी कभी दिक्कत आते हैं, मतलब। ग्रामर तो यार देखो, मैं 7 डेज की क्लास पे ग्रामर तो कवर नहीं करवा सकता, बिकॉज एक दिन फिर ग्रामर करवाऊंगा तो पूरा दिन चला जाएगा, है ना? जैसे तो फिर उसके लिए आप मेरी क्लासेस को की तरफ प्रोसीड कर सकते हो, वहाँ पे ग्रामर भी करवाई जाएगी। वहाँ पे चलो मैं ग्रामर के कुछ कुछ आपको रूल्स करवा दूंगा, बट वहाँ पे मैं डिटेल पे करवाता हूँ। मतलब वहाँ पे मैं सेंटेंस हो गया, प्रीपोजिशंस हो गए, कंजक्शंस हो गए, एडवर्ब्स हो गए, है ना? और ओके सर। आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, मैं सारे टॉपिक्स एकदम डिटेल पे अच्छे से कवर करवाता हूँ ताकि आप हर चीज़ को कर पाओ, Sir, ठीक है? ओके what सर, is the ओके। price of the batch? इट्स 2000 फॉर द होल मंथ। सर Okay. मेरे बारे में मतलब है ना, मैं बोल तो पाती हूँ, बोल नहीं पाती हूँ, सोच पाती हूँ लेकिन बोल नहीं पाती हूँ सही से। हाँ, आगे उसको मैं वही कंफ्यूजन। बता रहा हूँ कि स्टोरी टेलिंग उसका एक मेजर का कंपोनेंट है, तो हम कल करेंगे स्टोरी टेलिंग को, ठीक है? बाकी मैंने गाइस आपको बताया कि फर्स्टली वर्क अपॉन योर प्रोनाउंसिएशन एंड साउंड्स, एंड देन ओनली जस्ट ट्राई टू बी परफेक्ट इन द वोकैबुलरी एंड ऑल, ठीक है? Culture. बेसिक इंग्लिश Do से you भी आप एक्सप्रेस conduct कर one? सकते हैं। Do you conduct one-to-one classes? या बट राइट नाउ तो मैं से मेरे पास मतलब आई एम नॉट फ्री राइट नाउ बिकॉज आई एम जस्ट ऑक्यूपाइड ऑल द डे, बट हाँ मेरे पास 1-2 आवर्स हैं। उसके लिए आप मुझे प्लीज़ डीएम पे एक बार मुझे टेक्स्ट कर देना,
तो we will decide a time, and if it would be suitable for both of us, then definitely we will proceed ahead. ठीक है? Hi, sir. Sumit this side. Mm-hmm. Yeah. Hi, sir. From yesterday's class, you told like, sorry, I didn't get a time to replay the videos. हाँ. So you told that you will share that PDF for the pronunciation. Can we get it? So मैंने कहा था कि उसके लिए आप मुझे DM कर सकते हो. Okay. Then I'll DM. हाँ, Yeah. अभी आप DM कर देना, मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा. ठीक है? तो गाइस, Okay. जिसको PDF चाहिए तो आप लोग मुझे DM कर देना. मैंने वो ग्रुप पे इसलिए Okay. नहीं डाला ना, बिकॉज आई वांट कि जो लोग पर्सन सीरियस हैं वही जो उनको PDF मिले, उसका एक्सेस मिले, है ना, सबको ना मिले. Yeah, ठीक है? sure. हम्म, तो दैट्स द थिंग. कुछ पूछना है और? Yeah, sir, one So what question. is the fee of one-to-one Sir, session? For one-to-one sessions, I'll be able to let you know in the DMs, बिकॉज मेरी भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ कंडीशंस हैं कि मैं कितने डेज करवा सकता हूँ और फिर आप कितने डेज पे एग्री करते हो उसके लिए ना. बिकॉज कई लोगों को मैं 1-on-1 सेशन हफ्ते में सिर्फ 4 दिन देता हूँ, कई लोगों को सिर्फ 3 दिन देता हूँ. तो दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइम दैट आई विल बी एबल टू गिव. तो Okay, आप प्लीज़ sir. मुझे DM कर लेना, उसके लिए मुझे मेंशन कर देना कि सर आई वांट टू डिस्कस फॉर 1-on-1 सेशन, तो फिर हम कॉल पे कनेक्ट कर लेंगे. ठीक है? Okay, sir, sure. Sir, how डन. much hours live sessions we get in batches? जो आपका फुल मंथ वाला है ना, Yeah, उसका sir. देखो हमारी 5 क्लासेस रहती हैं एक वीक में. ठीक है? 4 to 5 क्लासेस, कई बार मैं 4 भी कर लेता हूँ, बट मैक्सिमम टाइम 5 ही रहती है, बट मिनिमम 4 तो रहती है. बट 5, देखो 5 मैं 4 क्यों बोल रहा हूँ, देखो फिफ्थ जो क्लास होगी ना वो थोड़ी सी उस टाइप की होती है. अब सुनो, जो डाउट क्लियरिंग सेशंस और ऐसे हम मतलब पर्सनली कनेक्ट करते हैं, उससे हम कुछ कवर नहीं करते, बट नॉर्मलाइज चीज़ें, नॉर्मली चीज़ों को कवर करता है. बिकॉज यार देखो, उससे कोई बेनिफिट नहीं है ना, मैं आपको डेली आ रहा हूँ पढ़ा के चला जा रहा हूँ, बेनिफिट नहीं है ना. इवन आप कनेक्ट भी कर रहे हो, आई नो कि सिर्फ 8-9 पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोग कनेक्ट कर रहे हो, दैट्स ओके. बट एक दिन ऐसा भी तो निकलना चाहिए ना कि यार थोड़ा सा इंसान मतलब हमेशा पढ़ाई उसको साइड में रख के थोड़ा सा नॉर्मली कनेक्ट करे, है ना, अच्छे से जान पाए चीज़ों को और अच्छे से डीपली मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स को और अच्छे से समझ पाऊँ. ठीक है? तो एक सेशन हम वो रखते हैं, तो 5 सेशंस होते हैं. ठीक है? और वो ऐसा नहीं है कि मैंने 1 मंथ का 5 बोला है, मैंने 4 ही लिए तो मैं नहीं करवाऊंगा. बट कई बार होता है कि मेरी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ काम में फंस जाता हूँ, तो मैं एक वीक एक्सटेंड कर देता हूँ. ठीक है? तो 24 से 25 यू कैन एक्सपेक्ट. ठीक Sir, है? I just have one last question. हम्म. So do you have any batch like where just focus on the pronunciation, not on grammar and nothing, just pronunciation? ऐसे तो देखो, ऐसे जो मैंने ऐसे भी इनिशिएट नहीं किया, बिकॉज ऐसी किसी की आज तक डिमांड नहीं आई, तो मैंने नहीं भी किया. बट हाँ, या इफ़ यू वांट तो इसको हम एक वीक का कर सकते हैं. तो उसको आई ट्राई कि मैं इसका बैच बनाऊं, बट ऐसा मैं कोई ऐसा इंटरेस्टेड नहीं है, तो या इसके लिए हम 1-on-1 सेशन रख सकते हैं फॉर अ वीक ऑल्सो, बिकॉज ये तो ज़्यादा लंबा टॉपिक है अभी. ठीक है? Okay, sir. I think आप you मुझे don't have. DM पे पूछ सकते हो जिसको भी पूछना है ना, जितने भी लोग यहाँ पे, आई नो यू आर द सीरियस वन गाइस. मैंने सब कुछ बता दिया. इसको जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, प्लीज़ अपने अच्छे से क्वेरीज को एक्सप्लेन करना. आई विल कॉल यू एंड वी विल कनेक्ट एंड देन वी विल एक्सप्लेन एंड एलाबोरेट ऑन दिस टॉपिक फर्दर. ठीक है गाइस? Sure. Thank you. अच्छा, एनी फर्दर डाउट्स? No, not from my side. ओके गाइस, तो जिसको भी डाउट्स होंगे तो काइंडली लेट मी नो, मुझे DM कर देना. एंड काइंडली डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक, इट रियली मोटिवेट्स मी. एंड मिलते हैं कल एक नई सेशन पे. कल का टॉपिक रहेगा स्टोरी टेलिंग. ठीक है? Done. Okay, thank you. Oh, guys, see you tomorrow. Take care. Bye bye. Okay, good night. Thank you, sir. I think you should